السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز برابر جا رہی ہے؟ ہماری آواز آپ لوگوں تک برابر پہنچ جی رہی ہے؟ الحمدللہ شیخ۔ الحمدللہ، تو ٹھیک ہے، ہم شروع کر رہے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم خواتین اسلام اور عزیز طالبات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج یہ درس مختصر صحیح بخاری پیش کرنے کا یہ موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صاف اور سلیس انداز میں بیان کرنے اور مجھے اور آپ سب کو حدیث کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین اسلام، پچھلے درس میں کتاب و بدء الوحی کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیسے بنایا گیا، نبوت و رسالت کا تاج آپ کو کیسے ملا، اس ضمن میں کچھ باتیں آئی تھی۔ البتہ یہ آغاز وحی کا بیان ابھی اس باب میں، اس چیپٹر میں کچھ اور احادیث ہیں جو آج میں انشاءاللہ آپ سے بیان کروں گا۔ آئیے آج کی پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے اسی باب میں ہم نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی کہ عملوں کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیتیں کہہ لیجئے کہ ٹھیک اور خالص رکھنا چاہیے، اور اسی طرح نبی صلی السلام اللہ علیہ علیکم ورحمۃ وسلم اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے، تھوڑا سا آواز کا کچھ ایڈجسٹمنٹ کیجیے انشاءاللہ۔ جی، پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آواز کم جا رہی ہے، آواز دھیمی ہے۔ یہ خواتین اسلام، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے برابر؟ جی الحمدللہ شیخ آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، اور سب سے پہلی آیات کیا تھی جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور پیارے نبی کی حدیث سے پتہ چلا کہ وہ سب سے پہلی آیات سورہ علق کی تھی، جن کا پیغام تعلیم تھا کہ اے لوگوں پڑھو۔
اپنے رب کے نام سے اپنی تعلیم کی شروعات کرو۔ اسی طرح ہماری نیتیں اس عمل سے پہلے خالص ہوں، اس کی بابت بھی حدیث آئی تھی، میں نے آپ کو سنایا تھا۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد وحی کا یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، جسے فترہ وحی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو سورہ مدثر کی آیات ہیں جو نازل ہوئی تھی، اور پھر ماشاءاللہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ وار آنا، یہ کہہ لیجیے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی کتاب و بدء الوحی کہ وحی کی شروعات اور آغاز، اس کا بیان۔ یہ روایت حضرت ابن عباس سے مروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے قول لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ بہت تیز مت چلاؤ، جلدی مت کرو۔ قال، راوی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کر لینے کے ارادے سے اپنے ہونٹوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ہلاتے تھے، اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ فقال ابن عباس فانا احركهما كما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے میں بھی حرکت دیتا تھا۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعہ اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دو کہ جلد بازی کا مظاہرہ ہو اور ایسا لگے کہ آپ بہت جلد بازی کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو مشقت لاحق ہوگی۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، سنو بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، یعنی اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ قال، راوی کہتے ہیں جمعہ لک فی صدرک وتقرؤہ، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا، یہ ہم پر ہے، یعنی اللہ پر۔ تو اس کے بعد ہے قال فاستمع له وانصت، تو اے نبی آپ غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر بے شک ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا، یعنی آپ کو بیان کی طاقت دینا، آپ کو اسے کھول کھول کر بیان کر دینا، اور پھر آپ کے ذریعہ سے لوگوں تک اسے پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا ان تقرؤہ، پھر ہمارے اوپر ہی ہے آپ کو پڑھانا۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل استمع، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا آتے، استمع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب غور سے سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل فرآه النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما فقرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأه، اور اگر قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
आकर जिब्रील कुरान सुनाते तो आप कान लगा कर सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वादे के मुताबिक इस तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जिब्रील ने पढ़ाया था, है ना। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सताती थी कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है मैं कहीं भूल ना जाऊं, है ना, कोई चीज छूट ना जाए। तो आप बड़ी तेजी से अपने जबान को हरकत देते थे पढ़ने के लिए, और आपको मशक्कत लाहिक होती थी। उसका जिक्र इसमें है कि अल्लाह ने उनसे कहा, इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, ये नबी इस कुरान को आपके सीने में जमा कर देना और आपको पढ़ा देना मेरा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, तो आप उजलत से काम न लो, जल्दबाजी न करो, अपनी जबान को तेजी से हरकत न दो, ये मशक्कत वाली बात। तो अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्रील की लाई हुई वही को अच्छी तरह से सुनते और उसे अल्लाह ताला आपके सीने में महफूज कर देता, और फिर आप उसी तरह पढ़ते जैसा जिब्रील आपको पढ़ा करके जाते। इस तरह अल्लाह महफूज कर देता। तो अगर आप देखें तो इस हदीस में कुरान के लिए 3 मराहिल का जिक्र है कुरान से मुताल्लिक। एक तो ये कि अल्लाह ताला इस कुरान को आपके सीने मुबारक में महफूज कर देगा, और अल्लाह ने महफूज कर दिया। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला आपके सीने में जो कुछ कुरान जमा है, जो आपके दिल में महफूज है, अल्लाह ताला इसे पढ़ने की तौफीक आपको देगा और आपको पढ़ा देगा, आप पढ़ेंगे उसे। ये दूसरा मरहला है। और फिर आखिरी मरहला, उसमें इस बात का जिक्र है कि कुरान में जो चीजें आई हैं, जो मुजमल हैं, मुख्तसर हैं, अल्लाह ताला उनकी तशरीह और उन मुश्किलात की तौजीह, इसकी भी आपको तौफीक अता फरमाएगा और आप इसकी तौजीह फरमा देंगे। तो ये हदीसें जो हैं, ये कुरान की तौजीह और वजाहत हैं, इसकी तशरीह और उसका एक्सप्लेनेशन है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और इसकी मदद से हम कुरान को समझ रहे हैं। तो कुरान के लिए गोया 3 मरहले इस हदीस में जिक्र हैं। एक ये कि ये कुरान आपके सीने में अल्लाह महफूज कर देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज कर दिया। फिर आप उसको पढ़ेंगे जो कुछ महफूज है, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे उसको। आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर करते थे। हाँ। और तीसरा ये है कि ये जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, आप इसकी तौजीह तशरीह भी उम्मत के लिए फरमाएंगे, अल्लाह ताला बयान की ताकत आपको दे देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अहादीस के जरिए कुरान के मानी, मफाहीम और उसका एक्सप्लेनेशन उम्मत तक पहुंचाया है, जो आज उम्मत पढ़ रही है और उससे नसीहत हासिल कर रही है, कुरान को समझ रही है और उस पर अमल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए हदीस नंबर 6। ये हदीस भी हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और एक लंबी इसके बाद एक लंबी हदीस आएगी, लेकिन ये भी हदीस नंबर 6, ये सफ़ा नंबर 78 पर है। तो आप ख़वातीन भी अपनी किताब अपने सामने रखें और इस तरह से आप सुने देखें, तो ये चीज़ आपके ज़्यादा समझने के करीब होगी और अज़बर हो जाएगी। देखिए मैं 6 नंबर की हदीस पढ़ रहा हूँ। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही से रिवायत है, कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बड़े सखी थे। वकाना अजवदा मा यकूनु फी रमज़ान, और आप रमज़ान में बहुत सखी हो जाते थे। हीन यल्काहु जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आपसे मुलाकात होती तो आप ज्यादा सखी रहते। वकाना यल्काहु फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान, और ये जिब्रील
رمضان کی ہر رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. وَيُدَارِسُهُ القرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے، اس کا دور کرواتے تھے. کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام. فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی طرف یا بھلائی کے کام کے لیے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یہ خوب بھلائیاں آپ کرتے تھے. رواہ البخاری، یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس طرح مختصر صحیح بخاری میں صاحب کتاب نے اسے درج فرمایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ اس وقت نازل ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کے اتنے حصے کا مراجعہ کرتے، دور کرتے اور پڑھتے. اس طرح سے اللہ نے یہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا تھا. اور جو آخری سال تھا آپ کی زندگی کا، جب قرآن نازل ہو چکا تھا، تو آپ نے اس میں حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، یعنی 2 مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا. پھر حدیث نمبر 7 ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. بلکہ میری بہنوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کو تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں. تو کیا واقعی قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں اپنی زندگی کے اندر یہ روٹین سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں روزانہ قرآن کو تلاوت بھی کرنا ہے، خاص طور سے فجر کے بعد، اور ہمیں دن کے کسی حصے میں وقت نکال کر قرآن فہمی کے لیے بھی بیٹھنا ہے. کہ اگر ہم روزانہ مثال کے طور پر آدھا پارہ، 1 پارہ، 2-4 پیج قرآن پڑھتے ہیں، تو کم سے کم 2-4 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، تفسیر ابن کثیر ہو، یا ابھی اس کا جو ابریج جو نسخہ آیا ہے، اس کا اختصار تفسیر ابن کثیر کا، جس کا نام ہے المصباح المنیر. ہاں، اختصار و تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر کا مختصر ابریج نسخہ، اس کا نام المصباح المنیر ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ابن کثیر نے جو کچھ ضعیف روایتیں ان سے نقل ہو گئی تھی، اس نسخے میں المصباح المنیر میں ان تمام ضعیف روایتوں کو نکال دیا گیا. صرف صحیح حدیثیں جو ابن کثیر نے نقل کی تھی انہی کو باقی رکھا گیا ہے. اس طرح سے بہت کہہ لیجیے آتھینٹک ہو گئی ہے یہ حدیث، یہ تفسیر کی کتاب المصباح المنیر جو ابن کثیر کا خلاصہ ہے. تو ہمیں اسے بھی رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم قرآن کو صبح شام جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اسے پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم قرآن کے احکامات پر عمل کر سکیں. اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 79 پر، 79 پر. وعنہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے. وعنہ انہی سے، مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں، خواتین، یہ ایک لمبی ترین روایت ہے لیکن بڑا جامع ترین واقعہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ابتدائی ایام میں جو وحی کے ادوار ہیں، قرآن کے نزول کی جو شروعات ہے نا، ان ابتدائی ایام میں جو کیفیات تھیں آپ کی، اور پھر آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا
दूसरों तक उसे पहुंचाने का जो तरीका था आपका, है ना, उस ताल्लुक से भी इसमें काफी कुछ बातें आई हुई हैं। और ये कि उस जमाने के लोगों का आपके बारे में रिमार्क क्या था, क्या मुलाहजात थे, और लोग आपके बारे में क्या बातें करते थे, वो तमाम चीजें इसमें हैं। जरा गौर से इस वाकये को सुनिए। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास से रवायत है, अन्न अबा सुफियान इब्न हर्ब अखबरहु। इब्न अब्बास कहते हैं कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने उन्हें खबर दिया। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अभी उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। क्योंकि अबू सुफियान का ईमान कब है? अबू सुफियान को इस्लाम की दौलत फतेह मक्का के मौके पर मिली है, यानी सन 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना जाने के 8वें साल जब मक्का फतह हुआ है, तो उस वक्त हजरत अबू सुफियान ईमान लाए हैं, इस्लाम लाए। ये उससे पहले का वाक़या है जब वो मुस्लिम नहीं थे, मोमिन नहीं थे। इब्न अब्बास कहते हैं अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया, अन्ना हिरक़्ल अरसल इलैहि फी रक्बिन मिन कुरैश, कि हिरक़्ल ने जो बादशाह रूम था, उसने कुरैश की एक जमाअत समेत उन्हें बुलवाया। कुरैश के कुछ लोगों के गरोह के साथ, टीम के साथ अबू सुफियान को बुलवाया। कानू तुज्जारन भी शाम, और ये जो गरोह था ये शाम में तजारत की गरज से आ रहा था। फिल मुद्दतिल्लती कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद फीहा अबू सुफियान व कुफ्फार कुरैश, और ये उस मुद्दत की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार कुरैश के बीच में एक मुआहदा चल रहा था, एक सुलह चल रही थी, सुलह की मुद्दत। फ़अतौहु वहुम बिइलिया, तो अबू सुफियान और उनके लोग आए हिरक़्ल के पास, जब हिरक़्ल ईलिया में थे। ईलिया उस जगह का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस से करीब, यानी शाम और सीरिया में ईलिया आए। फदआहुम व हौलहु उज़मा उर्रूम, तो हिरक़्ल ने उन सबको बुलाया, और उस वक्त हिरक़्ल के इर्द गिर्द, उनके आसपास रूम के बड़े बड़े सरदार थे। रूम के सरदारों को भी हिरक़्ल ने बुला रखा था, और अबू सुफियान के काफिले को भी बुलाया। सुम्मा दआहुम फदआ बितुर्जुमान, फिर अबू सुफियान और उनके गिरोह के जमात के लोगों को बुलाया हिरक़्ल ने, और अपने तर्जमान को भी, ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को भी बुलाया। फ़क़ाला, और उनसे बात करने लगा। अबू सुफियान से बात करने लगा हिरक़्ल, और उसने कहा, अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा रजुल, कि लोगों बताओ तुम में से कौन है जो इस आदमी से सबसे ज्यादा करीबी नसब रखता है, करीबी रिश्ता रखता है। इनमें से तुम में से कौन है जो रिश्तेदार हो इस आदमी का, या ज़ुअमु अन्नहु नबी, जिसका ख्याल है कि वो नबी, यानी ये नबूवत का दावा करने वाले इंसान से तुम में सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है नसब के साथ? फ़क़ाल अबू सुफियान कुल्तु अना अक़रबुहुम, अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि बादशाह, मैं उनमें, इनमें सबसे ज्यादा करीबी इस नबी का मैं हूँ, मैं उनका रिश्तेदार, उनके खानदान का। फ़क़ाल अदनहु मिन्नी, तो हिरक़्ल ने कहा कि ठीक है, इनको हमसे करीब कर दो। यानी अबू सुफियान को उसने करीब बुला लिया कि मेरे पास बैठो, करीब आ जाओ। वक़र्रबू अस्हाबहु, और कहा कि इनके साथियों को भी मेरे करीब ले आओ। अबू सुफियान आगे, और उनके साथी भी उनके साथ आए पीछे। फजअलूहुम इंद ज़हरिही, और इनके साथियों को इनके पीठ के पीछे बिठा दो, हिरक़्ल ने कहा। सुफियान को करीब बुला लिया और उनके साथियों को भी, और कहा सुफियान आगे रहेंगे, इनके साथी पीछे रहेंगे, पीछे बैठेंगे। बैठ गए। तो मकाल अली तर्जुमानी ही,
پھر اپنے انٹرپریٹر اور ترجمان سے ابو سفیان نے کہا قل لهم انی سائل عن هذا الرجل، کہ آپ ان سے کہو کہ میں اس آدمی یعنی اس نبی کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، میں کچھ سوالات کرنے والا ہوں، انہیں بتاؤ۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، تو اگر یہ ابو سفیان کچھ غلط بیانی کریں، جھوٹ بولیں اس آدمی کے بارے میں، فَكَذِّبُوهُ، تو آپ سب ان کے جھوٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ، یہ غلط بول رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان سے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو پھر ہرقل نے ان کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کا جھوٹ مجھے بتا دو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے جھوٹ سے بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس موقع پر ضرور جھوٹ بولا ہوتا، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ مجھے لوگ جھوٹ سے بدنام کریں اور میرے ساتھی مجھے جھٹلائیں، یعنی میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ ثم كان اول ما سألني عنه، پھر سب سے پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی اس نبی کے بارے میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ تھی ان قال، کہ اس نے کہا کیف نسبہ فیکم، کہ بتاؤ آپ میں اس کا حسب و نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ محترم خواتین اور عزیز طالبات، یہاں سے آپ لوگ مارک کر سکتے ہیں ہاں کہ سوالات ہرقل کے طرف سے کیے جانے والے سوالات، کوشچنز اباؤٹ دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام دی سائڈ آف ہرقل، یہ سوالات یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ ہے، عیسائی ہے نا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کے قافلے سے پوچھ رہا ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی غیر مسلم ہیں وہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ ان کا حسب و نسب اور خاندان تم میں کیسا ہے۔ قلت هو فینا ذو نسب، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ تو بڑے اچھے حسب و نسب اور خاندان والا ہے۔ قال فهل قال هذا القول من قال هل فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله، دوسرا سوال یہ تھا ہرقل کا کہ یہ جو اس نے نبوت کی، رسالت کی بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے، آپ میں سے کسی نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یعنی آپ کے کنبے قبیلے خاندان میں سے؟ قلت لا، سفیان کہتے ہیں ابو سفیان کی میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كان من آبائه من ملک، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، چوتھا سوال یہ تھا کہ بتاؤ قوم کے معززین بڑے لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، یا کمزور لوگ، غریب لوگ ہاں ان کا اتباع کر رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ فقلت ضعفاؤهم، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ جو کمزور ہیں وہی ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، کم ہو رہے ہیں لوگ یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو دن بدن
बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، कि क्या कोई, ये छठा सवाल है, कि क्या उनमें से कोई मुर्तद भी हो जाता है उनके दीन को नापसंद करते हुए, नाराज होकर, बाद अन यदखुल फी, उस दीन में दाखिल हो जाने के बाद क्या कोई निकलता भी है, बाहर आ जाता है, मुर्तद हो जाता है, क्या ऐसा भी कोई वाक़या हुआ है? कुल तो ला। अब उस बयान कहते हैं मैंने कहा कि नहीं, ऐसा भी कोई वाक़या नहीं, जो आदमी गया है वो हमेशा उनका होकर रह गया है। काला फहल तत्तहिमूनहु बिलकज़िब, सातवां सवाल ये है हिरकल का, बताओ क्या तुमने कभी उसको झूठ बोलते हुए पाया है? क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, ये दावा करने से पहले कि वो नबी हैं, रसूल हैं, इस दावे से पहले कभी आपने उनको झूठ बोलते हुए पकड़ा है? कुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। अब उस बयान कहते हैं मैंने कहा नहीं, कभी झूठ नहीं बोले हुए। काला फहल यगदिरू, आठवां सवाल ये है कि बताओ क्या ये नबी वादा करके कभी वादा खिलाफी भी करता है, बदअहदी भी करता है ये? कुल्तु ला, अब उस बयान कहते हैं मैंने कहा कि नहीं। वनहनु मिन्हु फी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा, अलबत्ता हम इस नबी से सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, ये सुलह की मुद्दत चल रही है, हमें नहीं मालूम कि इस बीच में वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बदअहदी नहीं की है, कोई वादा खिलाफी हमसे नहीं की है, कोई गद्र नहीं किया है। قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة, अबू सुफियान कहते हैं कि बस ये एक जुमला था जो मैं इस नबी के बारे में दाखिल कर सका, इसके अलावा कोई और चीज मैं इस नबी के बारे में नहीं कह सका, मुझे सच ही बोलना पड़ा। सिर्फ यही एक बात मैं कह सका कि हमारे और इस नबी के बीच में एक मुआहदा है, सुलह है, अहदो पैमान है, हमें नहीं मालूम कि इस बीच में वो क्या करेंगे। उस बयान कहते मैं सिर्फ ये एक जुमला कह सका उसमें, बाकी और कोई चीज में झूठी नहीं बता सका, मिलाने की जुर्रत ही नहीं कर सका। काल फहल कातल तुम, फिर नवा सवाल यह था कि कभी आपकी उनसे लड़ाई भी हुई है, आपने जंग भी किया है इस नबी से? कुल तो नाम, अब उस्मान कहते मैंने कहा हाँ हमारी जंग हुई है। काला फकई फकाना क़ितालुकुम इय्याह, तो आपकी जंग उनसे कैसी थी, आपने जो लड़ाई लड़ी तो उसका क्या रिजल्ट था? कुल तो अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, तो मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है हमारे और उनके दरमियान सिजाल थी, यानी ये लड़ाई हमारे और उनके दरमियान ऐसी रहती थी कि कभी हम उनको तकलीफ पहुंचाते थे और कभी वो हमें जख्म पहुंचाते थे, बराबर सराबर की रहती थी। कभी हमने उनको पीछे ढकेल दिया, कभी उन्होंने हमें पीछे ढकेल दिया, ऐसा होता था। ये अबू सुफियान ने बयान किया। ये ना लुमिना व नाना लुमिन हो, हम कभी उनको तकलीफ पहुंचा देते हैं और कभी वो हमें तकलीफ पहुंचा देते हैं, तो दोनों तरफ से ऐसा होता रहा है। काला फमादा यअमुरुकुम, दसवां सवाल था कि बताओ ये नबी तुम्हें हुक्म किस बात का देता है, ये नबी किस चीज का हुक्म देता है आप लोगों को? कुल तो यकूलु उअबुदुल्लाह वहदहु वला तुशरिकू बिही शैआ, तो उस बयान कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि ये नबी कहता है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ, वतरुकू मा काना यअबुदु आबाउकुम, और आपके आबा वो अजदाद जिनकी इबादत किया करते थे उन्हें छोड़ दो। वयअमुरुना बिस्सलाती, और ये नबी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, वस्सिद्की, और सच बोलने का हुक्म देता है, वल अफाफ,
और पाक दामनी अपनाने का, मॉडेस्ट रहने का हुक्म देता है। वसीलती, और रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म देता है। फ़क़ाल, तो फ़क़ाल लित्तुर्जुमान, तो हेरक्ल ने अपने ट्रांसलेटर से, इंटरप्रेटर से कहा, तर्जमान से, कुल लहू इन्नी सअलतुका अन नसबी, यानी तकरीबन 10 सवालात किए। उसके बाद क्या हुआ, 10 से 11 सवालात करने के बाद हेरक्ल ने तर्जमान से कहा कि इनसे कहो, अबू सुफियान से, कि मैंने आपसे पूछा इस नबी के नसब के बारे में, हसब के बारे में, तो आपने कहा अन्नहु फीकुम ज़ू नसब, की वो आपके दरमियान हसब व नसब वाला है। हाँ, शरीफुन नसब है। हाँ, अच्छे खानदान वाला है वो। वकज़लिक अर्रुसुलु तुबअसु फी नसब कौमिहा, और रसूल ऐसे होते हैं कि वो अपने कौम के अच्छे हसब व नसब में भेजे जाते हैं, अच्छे खानदान में भेजे जाते हैं। वसअलतुका हल क़ाल अहदुम मिनकुम हाज़ल क़ौल क़ब्ल, और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दावा जो इन्होंने किया है नबूवत का, इनसे पहले किसी और ने भी किया था आपके खानदान में? फ़ज़करत अन ला, तो आपने कहा कि नहीं, ये दावा इससे पहले किसी ने नहीं किया है। फ़क़ुल्तु लौ कान अहदुन क़ाल हाज़ल क़ौल क़ब्लहु, तो हिरक़ल कहते हैं, मैंने कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने खानदान में कही होती, लकुल्तु रजुलुन यतअस्सा बिक़ौलिन क़ील क़ब्लहु, तो मैं कहता कि ये तो वो बात है जिसे इस आदमी ने कहा है अपने किसी भाई से मुतासिर होकर। इनके फला भाई ने दावा किया था तो उसी से मुतासिर होकर इन्होंने भी दावा कर दिया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि इस खानदान के किसी आदमी ने इससे पहले दावा किया हो। वसअलतुका हल कान मिन आबाइही मिन मलिक, और अबू सुफियान मैंने आपसे ये भी पूछा कि क्या कोई बादशाह गुजरा है इस खानदान में, इनके आबा व अजदाद में से? फज़करत अन ला, तो आपने कहा कि नहीं, कोई बादशाह नहीं गुजरा है। कुल्तु लौ कान मिन आबाइही मिन मलिक, तो मैंने कहा कि अगर इनके बाप दादाओं में से कोई बादशाह गुजरा होता, कुल्तु रजुलुन यत्लुबु मुल्क अबी, तो मैं ये कह पाता कि चलो, ये तो अपने गुजरे हुए बाप दादा की बादशाहत चाहता है, इसलिए इसने ये नबूवत का दावा किया है। हुँ? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कोई बादशाह गुजरा हो कि वो इसकी बादशाहत खुद अपनाना चाहते हों और दावा कर रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं। वसअलतुका हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकिज़्ब, और मैंने आपसे ये भी सवाल किया कि क्या कभी आपने उनको झूठ बोलते हुए पाया है? हाँ, इनकी जिंदगी में झूठ आपने देखा है? क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, जो इन्होंने कहा है, जिसका दावा किया है नबी होने का, क्या इससे पहले कभी, इस दावा से पहले आपने कभी इनको झूठ से मुत्तहम किया है? झूठ बोलते हुए किसी चीज में पाया है आपने? फ़ज़करत अन ला, तो अबू सुफियान आपने जवाब दिया कि नहीं, कभी नहीं झूठ बोले ये। फ़क़द अअरिफ़ु अन्नहु लम यकुन लियदर अल-कज़िब अला अन्नास व यकज़िबा अला अल्लाह, इसीलिए मेरा कहना ये है, बादशाह कह रहा है, कि जो इंसान लोगों पर झूठी बात से परहेज करता हो, लोगों पर झूठ ना बोलता हो, तो वो अल्लाह पर झूठ कैसे बोल सकता है? इतना बड़ा दावा कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, वो कैसे कर सकता है? यानी वो सच्चा है। वसअलतुका अशराफुन्नास इत्तबऊहु अम दुअफ़ाउहुम, और मैंने आपसे पूछा कि क्या इस कौम के शुरफा, इज्जतदार लोग, वो रईस लोग, वो इनके फॉलोवर्स हैं, या कमजोर लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं, ऐसे लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं? फ़ज़करत अन्न ज़ुअफ़ाअहुम इत्तबऊ, तो आपने बताया कि जो कमजोर लोग हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, वो लोग जो है इनकी इत्तिबा और इनकी पैरवी कर रहे हैं।
वहुम अत्बाउर रसुल, और रसूलों के पैरोकार ऐसे ही होते हैं। कौन कह रहा है? हिरकल कह रहा है कि रसूल के पैरोकार, ये दबे कुचले लोग, कमजोर तरीन लोग जो होते हैं ना, वो सच्चाई को सबसे पहले मानते हैं। और जो धनी लोग, रईस लोग, सेठिया लोग होते हैं, वो तो अपने ईगो में रहते हैं। हाँ, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। तो रसूलों का हाल यही होता है, कमजोर लोग ही उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनकी बात मानते हैं। वसअलतुका अयज़ीदून अम यनकुसून, और मैंने आपसे पूछा कि ये लोग फॉलोवर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। फज़करता अन्नहुम यज़ीदून, तो आपने बताया कि नहीं, वो तो बढ़ रहे हैं। हाँ, उनमें इजाफा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और वो उन कह लीजिए कि दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है। वो कहता लिखा अमरुल ईमान, तो सुनो, ईमान का मामला तो ऐसे ही है ना, हत्ता यतीम, यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए, बढ़ता रहता है वो। हाँ, जब लोगों को ईमान मिल जाए तो फिर उसमें लोग बढ़ते रहते हैं। वसअलतुका अयरतद्दु अहदुन सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, और मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि क्या कोई इस दीन में दाखिल होने के बाद मुर्तद भी हुआ है, दीन से निकल भी गया है? फज़करता अल्लाह, तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ है। वकज़ालिकल ईमानु इज़ा हीन तुखालितु बशाशतुहुल क़ुलूब, और सुनो अबू सुफियान, ईमान का मामला तो ऐसे ही है ना कि जब वो किसी दिल में उसकी बशाशत दाखिल हो जाए, ईमान का नूर जब किसी दिल में दाखिल हो जाए, तो फिर इसी तरह से वो उस दिल को मुनव्वर कर देता है। हम्म? ईमान, उसकी बशाशत जब दिलों में दाखिल हो जाए, हाँ, तो फिर इसी तरह से ईमान रासिख हो जाता है, कोई उससे फिर वो उससे निकलता नहीं। वसअलतुका हल यग़दिर, मैंने आपसे ये भी पूछा कि क्या वो बदअहदी भी करते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं ये नबी? फज़करता अल्लाह, तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वकज़ालिका रुसुल ला तक़दिर, और रसूल ऐसे ही होते हैं, वो सच्चे होते हैं, बदअहदी नहीं करते, वादा करते हैं तो वादा पूरा करते हैं। वसअलतुका बिमा यअमुरुकुम, और मैंने पूछा था कि किन बातों का हुक्म करते हैं आप सबको, क्या बताते हैं ये, क्या चीज करने का ऑर्डर करते हैं आपको? फज़करता अन्नहु यअमुरुकुम अन तअबुदुल्लाह वह, तो आपने कहा कि वो इस बात का हुक्म देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक न करो। वयनहाकुम अन इबादतिल औसान, और वो रोकते हैं बुतों की इबादत से। वयअमुरुकुम बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल आफ़ाफ़, और ये हुक्म देते हैं नमाज पढ़ने का, सच बोलने का, और पाक दामनी अपनाने का, पाक दामन रहने का हुक्म देते हैं। फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न, तो अबू सुफियान सुनो, जो कुछ तुमने बयान दिया है ना, अगर ये सच्चा है, ये बयान अगर हक है, सच है, जो तुमने कहा, फसयमलिकु मौदिअ क़दमय हातैन, तो बस जल्द ही ये नबी इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां अभी मेरे ये दोनों पैर हैं, यानी जहां का बादशाह मैं हूं, जल्द ही ये नबी इस जमीन का मालिक बन जाएगा। वक़द कुन्तु अअलमु अन्नहु खारिजुन, मुझे पता था कि इस नबी का ज़हूर होने वाला है, ये निकलने वाले हैं। लम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम, लेकिन मेरा ये गुमान नहीं था कि ये नबी तुम ही में से होगा, तुम्हारे खानदान से होगा। मुझे इसका यकीन नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इस नबी का ज़हूर होने वाला है। फलौ अअलमु अन्नी अख़लुसु इलैहि लतजस्समतु लिक़ाअहु, अगर मुझे ये इल्म हो जाए कि मैं उसकी तरफ पहुंच सकता हूं, तो मैं उससे मुलाकात की ख्वाहिश करूंगा, मिलना चाहूंगा उससे। वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमी, और अगर मैं इस नबी के पास होता आज, तो मैं उसके कदम धोता, मैं उनके कदमों को पानी से धोता, मैं उसकी इज्जत करता।
ثم دعا بکتاب رسول اللہ، پھر ہرقل نے آ، اللہ کے رسول کا جو لیٹر آیا تھا اسے منگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس سے پہلے ہرقل کے پاس ایک لیٹر بھیج چکے تھے کہ اسلام لے آؤ، ہاں، اور تم محفوظ رہو گے، تم ایمان لاؤ گے، اسلام لاؤ گے، تمہاری رعایا بھی اسلام لائے گی۔ یہ لیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بادشاہوں کو گیا تھا وہ ہرقل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو وہ لیٹر ہرقل نے منگایا۔ الذی بعث به دحیۃ الی عظیم بصرہ، وہ لیٹر جسے دہیا کلبی لے کر کے آئے تھے عظیم بصرہ کے پاس، ہاں، ہرقل کے پاس، فدفعہ الی ہرقل، اور لا کر کے دہیا کلبی نے یہ لیٹر ہرقل کو دیا۔ فقرأہ، تو اس نے اسے پڑھا، فإذا فیہ، تو اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر اب یہ آ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ہرقل نے پڑھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ ہاں، ہمیں بھی اپنے خطوط اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے جب ہم کسی کو بھیج رہے ہیں۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ خط، یہ لیٹر جا رہا ہے ہرقل کی طرف جو روم کے بادشاہ ہیں، عظیم الروم۔ یہ مطلب عربی میں من لکھا جاتا ہے، من محمد، جس کو آپ انگلش میں فرام کہتے ہیں نا، فرام، فلاں کی طرف سے، اور آپ جو کہتے ہیں نا ٹو، کہ فلاں کو یہ خط ملے، تو اسے عربی میں ایلا کہا جاتا ہے۔ تو وہی ہے من محمد الی ہرقل، یہ خط محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرقل کو بھیجا جا رہا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اس میں آگے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہیں یہ لیٹر، لکھنے والا لکھتا ہے کہ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کا فالوور بن جائے، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، اس کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، تو سنو ہرقل، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ گے محفوظ رہو گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا اجر ڈبل عطا فرمائے گا، دو اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، دو مرتبہ ثواب۔ کیسے؟ آپ کا ثواب اور آپ کے پیچھے ہاں، عوام ایمان اور اسلام لائے گی۔ اسی طرح آپ ایمان لاؤ گے، آپ کا ثواب، اور آپ اس سے پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے ہو، عیسیٰ پر، اس کا بھی ثواب، ڈبل اجر آپ کو ملے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، اسلام نہیں لاتے ہو، تو آپ کے اوپر آپ کی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ آپ کی جنتا اگر اسلام نہیں لائی تو اس کا بھی گناہ آپ پر جائے گا۔ اریسیین، یہ عوام کو کہا جاتا ہے، پبلک کو۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اے اہل کتاب، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ قرآن کی آیت، کیا ہے وہ بات؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کریں، منہ پھیریں،
फक़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो तुम सब कहो, हाँ, कि तुम गवाह बन जाओ, हम तो मुसलमान हैं, हम इस्लाम ला रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को। कुरान की आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लेटर में लिखकर भेजी थी आपने। हाँ, वो लेटर पढ़ा जा रहा है। काला अबू सुफियान कहते हैं, फलम्मा काला मा काल, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर यहाँ खत्म हो गया। इस आयत के इख्तिताम पर प्यारे नबी की ने जो लेटर भेजा था वो यहाँ खत्म। उसके बाद अबू सुफियान कहते हैं, फलम्मा काला मा काल, फिर हेराकुल को जो कहना था उसने जब कह लिया, वफरगा मिन क़िराअतिल किताब, और वो लेटर को पढ़कर फारिग हुआ, इस खत को पढ़कर फारिग हुआ, कसुरा इंदहु सखब वरतफअतिल अस्वात, तो उसके आसपास जो लोग उसके हवारी मवारी बैठे थे ना, उनमें आवाजें बुलंद हो गई, बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा। यानी उसके जो मुशीर थे, उसके जो वज़रा थे ना, वो आपस में बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कशन करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हेरक़्ल कहीं इस नबी का मतवाला न बन जाए, हेरक़्ल हमारा बादशाह कहीं इस नबी का फॉलोअर न बन जाए। तो वो लोग आपस में ऊंची आवाज में बातें करने लगे। वो उखरिजना, अबू सुफियान कहते हैं, और हमें वहां से निकाल दिया गया, हम बाहर आ गए। फकुलतु लिअस्हाबी, अबू सुफियान कहते हैं, मैंने अपने साथियों से कहा, अपने असहाब से, साथियों से कहा, लक़द अमेरा अम्र इब्न अबी कबशा, कि इब्न अबी कबशा की बात तो काफी गूंज रही है। इब्न अबी कबशा, ये अबू सुफियान ने प्यारे नबी के लिए कहा था। ये अबू कबशा के बेटे असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में अबू कबशा ये उन्हीं में से थे। तो उन्हीं की तरफ मंसूब करके अबू सुफियान ने ये कहा कि अबू कबशा के बेटे की बात तो यहाँ गूंज रही है। इन्नहु यखाफुहु मलिकु बनिल अस्फर, ये जो बादशाह हिरक़ल है ये भी खौफ खा रहा है इस नबी से, डर रहा है। मलिक बनिल अस्फर, ये हिरक़ल को कहा गया है। फमा ज़िल्तुम मूक़िनन अन्नहु सयज़हर हत्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान कहते हैं कि फिर मुझे यकीन था, हाँ, मा ज़िल्तु मूक़िनन, मैं बराबर ये यकीन अपने दिल में रख चुका था कि इस्लाम गालिब होकर रहेगा, सयज़हर, गालिब हो जाएगा ये इस्लाम, हत्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। तो अबू सुफियान कहते हैं कि उसी वक्त से लेकर इस्लाम की अजमत मेरे दिल में आ चुकी थी, जो कुछ मैंने हिरक़ल से सुना था। हाँ, और मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि एक न एक दिन ये इस्लाम गालिब होकर के रहेगा। फिर अल्लाह ने मुझे भी इस्लाम अता फरमा दिया। और ये कब हुआ है? फतेह मक्का के मौके पर अबू सुफियान इस्लाम लाए हैं। उनकी बीवी हिंदा, वो भी इस्लाम लाई फतेह मक्का के मौके पर, सन 8 हिजरी। वकाना इब्न नातूर साहिबु ईलिया व हिरक़ल उस्क़िफ़ अला नसार शाम, और ये जो इब्न नातूर है, इब्न नातूर, ये ईलिया का गवर्नर, ये हिरक़ल की तरफ से ईलिया के गवर्नर, उस्क़िफ़ अला नसार शाम, और शाम के ईसाइयों के पादरी थे। युहद्दिसु, ये बयान करते हैं, इब्न नातूर ये बयान करते हैं, जो हिरक़ल की तरफ से ईलिया में गवर्नर थे और ईसाइयों के पादरी थे, वो बयान करते हैं, अन्ना हिरक़ल हिना क़दिमा ईलिया, कि हिरक़ल जब ईलिया तशरीफ लाए, अस्बहा खबीसन नफ्सी, तो बहुत ज्यादा सोचो फिक्र में पड़े हुए थे। हाँ, बड़ी गंभीरता से कोई चीज सोच रहे थे एक दिन सुबह को। फ़क़ाल लहू बअज़ु बतारिक़तिही, तो उनके बाद साथियों ने उनसे कहा, क़द इस्तनकरना हैअतका, कि आपकी शक्ल बहुत बुझी बुझी सी लग रही है, आप बहुत उदास लग रहे हो हिरक़ल। काला इब्न नातूर, तो इब्न नातूर कहते हैं, वकाना हिरक़ल
الحذاء ينظر في النجوم، کہ ہرقل یہ علم نجوم کے ماہر تھے، ستاروں کو دیکھ کر کے بہت ساری چیز ہے نا لوگ اس کا علم رکھتے تھے، جن کو نجومی کہا جاتا ہے۔ تو ہرقل اپنے زمانے کے ماہر نجوم تھے، وہ ایکسپرٹ تھے علم نجوم میں۔ فقال لهم، تو ہرقل نے ان سے کہا، حين سألوه، جب انہوں نے اس سے سوال کیا، کیا کہا ہرقل نے؟ انی رأیت اللیلۃ حين نظرت في النجوم، کہ میں نے رات کو دیکھا جب میں نے ستاروں میں غور کیا، ان ملک الختان قد ظہر، میں نے دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ جو لوگ ختنہ کرتے ہیں، جن کے بچوں میں ختنہ کا رواج ہے، تو ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ فمن یفتتن من هذه الامہ، تو بتاؤ یہ جو نیشن ہے نا، اس امت کے کون سے لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں؟ ہاں، مطلب یہ جو امت انسانیت ہے، تو کون سے لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں؟ قالوا لیس یختتن الا الیہود، تو ہرقل سے ان کے حواریوں نے کیا کہا، ان کے مشیران کار نے، کہ ختنہ تو یہودی صرف کرتے ہیں، یہودی لوگ کرتے ہیں۔ فلا یہمنک شانو، تو آپ کو ان سے کسی طرح کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْکِکَ فَيَقْتُلُ مَنْ فِیہم مِنَ الْیہود، ہاں، تو ان کی شان آپ کو کسی طرح غمناک نہ کرے، غمزدہ نہ کرے، یعنی آپ کو ان کے بارے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ آپ لکھو اپنے مدائن کے بادشاہ کی طرف لیٹر لکھو، فَيَقْتُلُ مَنْ فِیہم مِنَ الْیہود، کہ وہاں پر جتنے یہودی لوگ ہیں وہ ان کو قتل کر ڈالیں، ہے نا۔ اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے اور وہ آپ کی کرسی لے لے گا، آپ کی زمین چھین جائے گی، تو یہ ختنہ تو یہودی کرتے ہیں، آپ حکم دے دیجئے اپنے گورنروں کو کہ جو بھی یہودی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانٍ، کہ اسی اثنا میں کہ ہرقل جو ہے بھیجنا چاہتے تھے کسی کو، تو اسی دوران یہ ہوا، ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی آیا جس کو بادشاہ غسان نے بھیجا تھا۔ غسان ایک جگہ ہے، وہاں کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ یخبر عن خبر رسول اللہ، تو وہ جو آدمی آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر آیا تھا بادشاہ غسان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہرقل کو بھی لیٹر بھیجا تھا اور غسان کے بادشاہ کو بھی لیٹر بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر ہرقل اپنے پاس آئے ہوئے لیٹر کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا ابو سفیان کے قافلے سے، اور وہاں غسان کے بادشاہ کو جو لیٹر آیا تو اس بادشاہ نے بھی ہرقل کے پاس اپنا آدمی بھیجا، ہاں، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا نا، تو مطلب کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھو یہ ظاہر ہو گئے ہیں، یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ غسان کا آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لایا۔ فلما استخبرہ ہرقل، تو جب ہرقل کو ان کی خبر ملی، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، تو ہرقل نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ عرب لوگ جو ہے کیا وہ ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے حواریوں نے کیا بتایا تھا کہ یہودی لوگ ختنہ کرتے ہیں، اور یہاں بادشاہ غسان کا لیٹر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہرقل نے کہا کہ جاؤ جا کر پتا کرو عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں۔
फनज़रू इलैहि, तो उनका आदमी गया और देखा, उसने मालूमात हासिल की। फहद्दसूहु अन्नहु मुख्ततिम, तो लोगों ने बयान किया कि हाँ, उनमें खतना का रिवाज है, वो खतना करते हैं, अरब के लोग खतना करते हैं। वसअलहु अनिल अरब, और पूछा अरब के बारे में। फ़क़ाल हुम यख्ततिनून, तो जवाब दिया उनके कासिद ने कि हाँ, अरब के लोग सारे खतना करते हैं। फ़क़ाल हिरक़्ल, तो हिरक़्ल ने कहा, हाज़ा मुल्क हाज़िहिल उम्मा क़द ज़हर, यही इस उम्मत का बादशाह है जो जाहिर हो गया है, यानी यही मोहम्मद, ये इस उम्मत के बादशाह हैं जो जाहिर हो गए हैं, खतना करते हैं और इनके लोग भी खतना कर रहे हैं। ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، फिर हिरकल ने अपने एक साथी को, मतलब एक और बादशाह को, इस बारे में लिखा रूमी जबान में। वकान नज़ीरहु फिल इल्म, और जिसकी तरफ हिरकल ने ये लेटर भेजा वो भी हिरकल की तरह आलिम था। जैसे हिरकल ये इंजील का पढ़ा हुआ और अहले किताब का एक आलिम था हिरकल, ऐसे ही हिरकल ने अपने एक साथी की तरफ भेजा जो आलिम था। वसारा हिरकल इला हिम्स, और फिर हिरकल हिमस गए, हिम्स एक जगह, वहां गए। फलम यरिम हिम्स हत्ता अताहु किताब मिन साहिबिही, तो अभी हिमस में वारिद नहीं हुए थे, यहाँ तक कि उनके साथी का एक लेटर उन्हें मिला। जिनकी तरफ हिरकल ने लेटर भेजा था ना, उस साथी ने एक लेटर, उसका जवाब दे करके हिरकल को भेजा। युवा से कोरा या हिरकल अला फरूजिन नबी, उनका साथी भी हिरकल के राय का सपोर्ट कर रहा था कि ये नबी जाहिर हो गए हैं, मुझे भी इसका इल्म हुआ है, मैं भी इसे तस्लीम करता हूँ, ये नबी जाहिर हो गए। वो अन्नहु नबी, और ये क्यों वो नबी हैं, इसको भी उनका साथी तस्लीम कर रहा था। जो लेटर हिरकल की तरफ आया, इस तरह से गोया तो हिरकल के दिल में भी नबी की बात बैठ गई, और उनका साथी जो आलिम था इंजील का पढ़ा हुआ, उसने भी कहा कि मैं मानता हूँ कि ये नबी। फ़अज़िन हिरकल लिउज़मा अर्रूम फ़ी दस्तरा लहू बिही, तो फिर हिरकल ने रूम के बड़े बड़े सरदारों को, मुशीरों को, वजीरों को, सबको इजाजत दिया कि वो एक जगह हिमस में जमा हो जाएं। दस्तरा जहां पर मीटिंग होती है, उस जगह पर जमा हो जाए। सुम्मा अमर बिअबवाबिहा फगुल्लिकत, लोग जब आ गए तो हिरकल ने हुक्म दिया कि तमाम दरवाजे इसके बंद कर दिए जाएं। जब वो लोग मीटिंग हॉल में आ गए, जहाँ पर बादशाह बैठता था, हाँ, गवर्नर बैठते थे, तो उसके बाद हिरकल ने तमाम दरवाजों को बंद करवा दिया जहां से लोग निकल सकते थे। सुम्मा तला फकाल, फिर वो उज़माए रूम की तरफ नमूदार हुआ, मतलब जाहिर हुआ, आया और कहा, पैगाम पैगाम दिया उन्हें और कहा, या माशर रूम, ए रूम के लोगो, हल लकुम फिल फलाह वर रुश्द व यसबुता मुल्क, वो बताओ, क्या तुम कामयाबी चाहते हो, फलाह चाहते हो, और क्या तुम्हें इस बात की ख्वाहिश है कि तुम्हारी बादशाहत बाकी बाकी रहे। फतुताबिउ हाज़न नबी, अगर ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी बादशाहत सलामत रहे, तुम कामयाब हो जाओ, तो तुम इस नबी की पैरवी कर लो। तुताबिउ हाज़न नबी, ये जो अरब में जाहिर हुआ है, इस पर ईमान को ले आओ। फहासु हैसत हुमरिल वहश फिल अबवाब, फिर क्या हुआ, ये तमाम लोग जो आए थे ना दरबार में, सब के सब वहशी जानवरों की तरह भाग खड़े हुए दरवाजों की तरफ। फवजदूहा कद गुल्लिकत, तो वहां गए तो दरवाजे सब बंद।
बाहर निकलने का रास्ता नहीं। या, यानी हेरक्ल की बात से मुत्तफिक नहीं हुए उनके वजीर, उनके मुशीर और उनके हवारी जो लोग थे, जिनको बुलाया था दरबार में हेरक्ल ने, वो लोग इसकी बात से मुत्तफिक नहीं नहीं हुए। जो उसने कहा था कि इस नबी की पैरवी कर लो, इस पर ईमान ले आओ, वो लोग नहीं राजी हुए। बल्कि क्या हुआ, साहब के साथ जंगली जानवरों की तरह बिदक कर भागे, लेकिन दरवाजे बंद थे, बाहर नहीं जा सकते। फलम्मा रअा हिरक़्ल नफ़रतहुम, तो जब हेरक्ल ने देखा कि ये तो मुतनफिर हैं, कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, नबी को मानने वाले नहीं हैं, वह आयसा मिनल ईमान, और हेरक्ल इनके ईमान से मायूस हो गया कि ईमान नहीं लाएंगे। क़ाल रुद्दूहुम अलैया, तो कहा कि जाओ इन लोगों को फिर से बुला कर लाओ मेरे पास, इन्हें लौटाओ मेरी तरफ। असल में कोई बाहर जा तो सकता नहीं था, दरवाजा बंद था ना, तो अपने दरबानों को फिर से हिरक्ल ने भेजा, जाओ सबको बुला बुला कर लाओ, जाओ सबको मेरे पास दोबारा लेकर आओ। वक़ाल इन्नी कुल्तु मक़ाला, दोबारा जब लोग आकर वापस बैठ गए, तो हिरक्ल ने कहा कि लोगों, मैंने अभी अभी इन्नी कुल्तु मक़ालती आनिफन, अभी अभी मैंने जो बात कही थी ना आप लोगों से, जो बात मैंने जिक्र किया था कि इसकी पैरवी करो, अख्तबिरु बिहा शिद्दतकुम अला दीनिकुम, असल में मैं तुम्हारा इख्तिबार और इम्तिहान ले रहा था कि तुम अपने दीन पर, ईसाइयत पर कितने पक्के हो, मैं ये जानना चाहता। फकद राई थी, तो मैंने देख लिया, मैंने एग्जाम ले लिया आपका, आप बहुत पक्के हो अपने ईसाइयत में, अपने नसरानियत में, अपने दीन के बहुत बड़े पैरोकार हो, मैंने देख लिया। तो बस मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी ईसाई हूँ, और आप मेरे ईसाई मुशीर हैं, और आप सब माशाल्लाह अपने इस दिन में पक्के हैं, मैं इससे खुश हूँ। यानी हिरक्ल ने अपना पैंतड़ा बदल बदल दिया, हालांकि उसके दिल में ईमान दाखिल हो रहा था, वो चाहता था कि इस नबी का पैरोकार बन जाए, लेकिन वो अपने मुशीरों के बारे में, वजीरों के बारे में जानना चाहता था कि उनकी राय क्या है, क्या वो लोग भी मान रहे हैं कि नहीं, वो लोग भी इसे तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसे अपने जान का खतरा था, उसे अपनी कुर्सी का खतरा था कि अगर मैं ईमान लाऊं तो मुझे मार भी सकते हैं ये लोग, मुझे कुर्सी से हटा भी सकते हैं ये लोग। तो उसने अपने दरबार में इन सबको बुलाकर ये मुशावरती मीटिंग रखी, और ये पैगाम रखा कि देखो, कामयाबी चाहते हो और अपनी बादशाहत की बका चाहते हो, तो इस नबी पर ईमान ले आओ। लेकिन सबके सब बिदक कर भाग भाग गए। उसे लगा ये तो ईमान लाने वाले हैं नहीं, तो फिर उसने अपनी बात बदल दी, और क्या कहा कि मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम ईसाइयत पर कितने पक्के हो, हाँ, ईसाई होने में कितने ज्यादा पुख्ता हो, और मैंने देख लिया कि तुम बहुत पक्के हो, बहुत पुख्ता हो, तो बस मैं खुश हूँ। फसजदू लहू वरज़ू अन्हु, तो सारे के सारे फिर सजदा रेज हो गए, हिरक्ल को सबने सजदा कर लिया और उससे खुश हो गए। फकान ज़लिका आखिर शन हिरक्ल, हिरक्ल की आखिरी हालत थी जो इस मजलिस में हुई। उलमा ने लिखा है कि हिरक्ल की नीयत तो साफ साफ थी, वो ईमान लाना चाहता था, और ये तमाम बातें उसकी गवाह हैं, लेकिन उसने अपनी जबान से कभी इस्लाम का इजहार नहीं किया, ना तो कलेमा पढ़ा और ना ही उसके मुताबिक उसने अमल किया, इसलिए वो मुसलमान नहीं रहा। इसलिए इस्लाम और ईमान के लिए जरूरी है कि जबान से भी ईमान का, इस्लाम का इकरार हो, दिल भी उसे माने, और फिर ईमान के तकाजों पर अमल भी करे वो, तब वो मुसलमान होगा। जैसे नज्जाशी के बारे में देखिए, नज्जाशी बादशाह भी जब वहां पर लोग गए थे उनके दरबार में मुसलमानों को वापस लाने के लिए, तो नज्जाशी ने भी उनसे कुछ सवालात किए थे, है ना, और उन सवालात के बाद नज्जाशी की आंखें बहने लगी, वो रोने लगा था। जो कुछ
नबी के सहाबा से उन्होंने सुना, है ना। आ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई, अली बिन अबी तालिब के भाई ने जो कुछ बयान किया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या चीज का हुक्म देते हैं, किससे रोकते हैं, आपके अखलाक क्या हैं, किरदार क्या हैं, वो सब नज्जाशी ने पढ़ रखा था इंजील में। तो ये सुनकर नज्जाशी रोने लगा, उसकी आंखें बहने लगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी रियाया भी ईसाई थी, इस, इसलिए खुलकर वो ईमान नहीं लाया। लेकिन इसके बावजूद जाफर तैयार जो थे, जाफर जाफर बिन अबी तालिब, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है, उनके काफिले से नज्जाशी ने अपने ईमान का इकरार किया था। उसने कलमे शहादत पढ़ा था, ईमान लाया था, और फिर वो चुपके ईमान के तकाजों पर नज्जाशी अमल भी करता था। अगरचे कि बबांगे दोहर अपने मुशीरान कार को, अपने वजीरों को, अपनी आवाम को उसने नहीं बताया अपने ईमान के बारे में, क्योंकि उसे खतरा था अपने जान का। लेकिन ईमान को अपने दिल में छुपा कर और जबान से जाफर तैयार उनके साथियों के सामने ईमान का इकरार करके उसके तकाजे पर भी वो अमल करता था। हाँ, छुप छुप कर वो अल्लाह की इबादत करता था नज्जाशी। इसीलिए जब नज्जाशी का इंतकाल हुआ है तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को नबी के पास भेजा और नबी को खबर दिया कि आपके भाई नज्जाशी का इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह नज्जाशी की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ने के लिए लोगों में ऐलान करवाया मदीने में कि लोगों जमा हो जाओ। लोग जमा हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें आपके भाई नज्जाशी की मौत की खबर मिली है, हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी की नमाज जनाजा पढ़ा। क्यों? इसलिए क्यों मोमिन, है ना, ईमान लाए, जबान से भी उन्होंने कलमे शहादत पढ़ी, दिल में भी उसका इकरार किया, और वो उसके तकाजे पर भी छुप छुप कर जहां तक हो सका अमल करते रहे और अल्लाह के नेक बंदे बनकर रहे। लेकिन हेरकल के बारे में ऐसा नहीं। हेरकल अगर से कि दिल से मान रहा था कि वो नबी हैं, सच्चे नबी हैं, लेकिन जबान से उसने कभी इकरार नहीं किया। कहीं इसका सबूत नहीं मिलता कि उसने जबान से अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इसका इकरार किया हो, जबान से भी माना हो, इसका सबूत नहीं मिलता। और बाद में जो वो जिंदा रहा, उससे ये भी नहीं पता चलता है कि उसने ईमान के तकाजों पर अमल किया हो। इसीलिए उसको मोमिन नहीं माना गया है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ दिल में ईमान हो, जबान से इकरार ना किया जाए तो ईमान साबित नहीं होगा, उस आदमी को मोमिन नहीं कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे आप देखें, फिरौन मूसा के जमाने में था। मूसा अलैहिस्सलाम की तो नबूवत के बारे में कुरान ने कहा है कि दिल से वो मान चुके थे, दिल से मान चुके थे। लेकिन कुरान ने क्या कहा? वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम जुल्मन व उलुवा। जुल्म और ईगो की वजह से, सरकशी की वजह से उन्होंने मूसा की नबूवत का इनकार किया। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनका दिल मान चुका था, यकीन कर चुका था, उनका नफ्स इसे तस्लीम कर रहा था कि मूसा नबी रसूल है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जबान से इनकार किया। दिल मान रहा था पर जबान उसके खिलाफ बोल रही थी, इसलिए वो भी मोमिन नहीं हुए। न फिरौन मोमिन कहा गया, न उस हवारी मवारी। तो इसीलिए हेरक्ल भी, अगर से कि नबी की नबूवत का मामला उसके दिल में दाखिल हो गया था, वो नबी को सच्चा नबी मान रहा था, लेकिन जबान से उसने इकरार नहीं किया और फिर अमल करके उसने ईमान की तरफ, ईमान के दायरे से खारिज रहा। उसको मुर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने मुसलमान नहीं माना है, और न किसी सहाबी ने उसके ईमान का इकरार किया है। तो ख़वातीन इस्लाम, एक लंबी तरीन हदीस थी जो इस बाब में थी। हाँ, इमाम बुखारी से लेकर आए थे ये बताने के लिए कि देखिए आगाज वही में मामला कैसा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही उतरी, किस तरह आपने उसकी तबलीग की, बादशाहों को लेटर लिखे, और फिर बादशाहों की तरफ से उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ। हाँ, शुरुआती दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरह के हालात का सामना हुआ, है ना।
یہ حدیث بہت ہی قابل عبرت ہے. ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اقرار باللسان، وتصدیق بالجنان، وعمل بالارکان. کہ اگر ایمان دیکھنا ہے تو ہمیں تین چیز دیکھتے ہیں کہ آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہو، وہ تصدیق بالجنان، اور قلب سے بھی اس کا اقرار، تصدیق ہو، اس کا دل بھی اسے مان رہا ہو. وہ عمل بالارکان، اور پھر وہ ایمان کے تقاضے پر عمل بھی کر رہا ہو اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاں اپنے ہاتھ پیر سے، اور اللہ نے جو دیے ہیں اس پر وہ کاربند ہو تو مومن سمجھا جائے گا. ادروائز اگر صرف دل میں ایمان ہو، زبان سے اقرار نہ ہو، اس کے تقاضوں پر عمل نہ ہو، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اسے مومن نہیں تسلیم کیا جائے گا. تو عزیز طالبات اور معزز خواتین، آج کا درس یہیں پر میں روکتا ہوں. اب انشاءاللہ آپ چاہیں تو سوالات کریں.